Like, yes. Now we can start. Who will read today? I can read, sir, today. Who is it? Poonam. Poonam, yes, Poonam. Please go ahead. Yes, sir. Thanks. Thank you, sir. Sir, from this page, I need to read 150. Yeah, the secret to the world. Lisa Nicholas. Okay, sir. Lisa Nicholas. People have a tendency to look at the things that they want and say, yes, I like that, I want that. However, they look at the things that they don't want and they give them just as much energy, if not more, with the idea that they can stamp it out. They can eliminate it, Obliterate it. Yes. In our society, we have become content with the fighting against things, fighting against cancer, fighting against poverty, fighting against war, fighting against drugs, fighting against terrorism, fighting against violence. We tend to fight everything we don't want, which actually creates more of a fight. Yes. तो क्या करते हैं हम लोग? We want something, but we locate something that we don't want. We have some want कि हमको ये करना है, और हम देखते कहाँ पर है? What we don't want to see, or we don't want, उससे हम ज़्यादा देखते हैं. We will say we are fighting against drugs. जैसे we are fighting against war. तो ये मैडम आगे नाम आएगा ना. So she said, I will not come for the against war, but if you go for a peace, a rally for a peace, I will come. मतलब उनको क्या बोलना है कि जो चाहिए वो बोलिए. If you don't want war, if you don't want violence, don't say violence. Don't use that word violence. Say peace, calmness, friendship. You know, now आप बोलोगे I want to fight against drugs या ड्रगलेस, तो वो आपका वर्ड दिमाग में आता है, ड्रग आता पहले. When you say terrorism, आपके दिमाग में पहले आता है terrorism. So you cannot think of something which you are saying no to. because पहले उसको सोचना पड़ेगा, फिर आपको नो बोलना पड़ेगा. I say I don't like पूनम, तो पहला पूनम बोलूंगा, पूनम तो दिमाग में आएगी ना. I will have reflect that photo of yours. तो हमको वो वर्ड बोलना ही नहीं है, हमको वही बोलना जो हमें चाहिए. If we want financial freedom, we should talk about financial freedom. You know, we want to see people happy. Don't say I want to remove sadness. तो उसी पे फोकस करिए जो आपको चाहिए. Yes, ma'am. Let's go ahead. Hal Doskin, teacher and author of the Sedona method. Anything we focus on, we do create. So if we really angry, for instance, at a war that's going on, or strife or suffering, we are adding our energy to it. We are pushing ourselves. That only creates resistance. What you resist, persist. आप जो चीज को रेजिस्ट करोगे, इट्स सेडोना मेथड उन्होंने बोला है, मगर आप जो चीज को रेजिस्ट करोगे, आप जो ना बोलोगे वो और बढ़ेगा. आप जिस आदमी को पुश करोगे ना, वो ज्यादा आपके सामने आएगा. इट इज इफेक्ट और आफ्टर इफेक्ट. नहीं, वो क्या होता है ना. ये सेडोना मेथड क्या होता है? कुछ है? इनका मेथड है, ये नाम है सेडोना. अच्छा. जिस चीज को आप ना बोलोगे वो ज्यादा बढ़ेगा. तो डोंट पुश एनीथिंग. It will reflect, action and reaction. What you act upon will react, तो आपका उल्टा ज्यादा बढ़ेगा वो. So you should only think about what you want. So आपको जो चाहिए उसके बारे में सोचिए. Don't try to push something that you don't want. It will come more and more to you. ओके सर, तो जैसे ऐसे थॉट्स आते हैं कि कहीं हम बीमार नहीं पड़ जाएं, कहीं ऐसे नहीं हो जाए. हाँ, तो what are you attracting? बीमारी. आपके दिमाग में वर्ड क्या आता है? बीमारी. आपका सबकॉन्शियस में वर्ड क्या बैठता है? बीमारी. जैसे जो आदमी होता है, बहुत बार कैंसर बोलता है, उसको कैंसर हो जाता है. ये आप आराम से मार्क करना अपने लाइफ में. बहुत जन के साथ जो हुआ है ना, क्या होता है, कई बार हमको दिखता नहीं, बट दे आर इंटरनली वरीड अबाउट समथिंग एंड दे अट्रैक्ट दैट थिंग. आप प्रूव नहीं कर सकते हो ऐसा, मगर इफ यू टॉक टू देम, कम टू दैट, दे वर वरीड अबाउट समथिंग एंड दे अट्रैक्टेड.
कई बार तो आदमी को बोलते हैं कुछ ऐसे बात कर, जेल की बात करते हैं, बस्ती में बोलते हैं मैं जेल ले जाऊंगा, जेल ले जाऊंगा, और हो जाता है। द वे वी आर टॉकिंग इसमें नहीं होता है, मगर जब थॉट्स आते हैं ऐसे आदमी को, मुझे जेल नहीं जाना है, बस मुझे और कुछ हो जाए अंदर, जेल नहीं जाना है। आई टोटली एडमिट है, मैं कुछ भी हो जाए मेरे को बस आई वांट मनी, मतलब पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। और मेरे को इतनी तकलीफ आ गई अभी पैसे की कि आई एम अगेन कमिंग अप। अभी तो मेरा सोच अलग हुई है, मैं वापस ऊपर आ रहा हूँ। बट आई फेल्ट दैट, वो मैं जिसको ना बोल रहा था वो हो गया अपने आप। पीपल डिच मी, चीटेड मी, और वही कौन अपने भागीदार। सो व्हाट यू ट्राई टू रेजिस्ट परसिस्ट, डोंट ट्राई टू डू इट। सर अभी मैं किसी से नफरत नहीं करता हूँ, मेरे पार्टनर ने जो भी किया, जो किया उनका नसीब था, मेरा नसीब में वो मुझे मिलेगा। सो आई स्टार्टेड लाइकिंग देम, आई मेड देम फ्रेंडशिप विद देम। ठीक है ना, हो गया हो गया, अब क्या। सो दिस इज व्हाट यू शुड डू, यू शुड ऑलवेज अट्रैक्ट व्हाट यू वांट बाय आस्किंग फॉर दैट। डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू डोंट वांट बाय टॉकिंग अबाउट दैट थिंग, इट विल परसिस्ट। ओके, यस मैम। The reason that what you resist persists is because if you are resisting something, you are saying, no, I don't want this thing because it makes me feel this way, the way I am feeling right now. So you are putting out a really strong emotion of, I really don't like this feeling, and then it comes to racing towards you. इट कम रेसिंग टू, जोर से आता है। आप Resistance. स्प्रिंग आप है ना जो जी, अरे पूनम, व्हेन यू प्रेस अ स्प्रिंग, आप स्प्रिंग प्रेस क्या होता है, तार से ऊपर आती है ना, जी, इट इज लाइक दैट। इफ यू प्रेस समथिंग ना, इट विल अगेन कम फोर्सफुली टू यू। because of sir that strong feeling of fear. यस, आपको डर है वो हो नहीं जाए, और वही होता है। जी, आप बोलोगे ना, समझो आप रास्ते पे चलो, जैसे मेरा खास मैं बोलता हूँ, आई एम अ हैंडीकैप पर्सन ना, तो आई कॉल माई सेल्फ स्पेशली एबल्ड पर्सन, तो आई वर्क विद क्रचेज। तो जब मैं कभी समझो पानी गिरा है कुछ, या बहुत स्मूथ टाइल से, तो इफ आई एम वरिंग ना, अरे मैं गिर जाऊंगा, वो टाइम मेरा क्या था, पूरा हाथ पैर टाइट हो जाता है, स्टार्ट पेनिंग, और स्लिप होने का चांस होता है। बट व्हेन नाउ आई स्टार्टेड यूजिंग दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो आई डोंट वरी, आई वर्क वेरी, मतलब प्रेम से चलता हूँ। आई डोंट गिव एनी प्रेशर टू माई सेल्फ, तो कुछ नहीं होता है, आई डोंट फॉल। लाइफ हैज बिकम वेरी डिफरेंट फॉर मी। ये आपको छोटी बात लगी, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आई नो व्हाट इज हैपन। तो जो सोचते हैं वो ज्यादा होता है। इफ यू आर अफ्रेड ऑफ फॉलिंग, यू विल फॉल। मगर इफ यू टेल इन योर माइंड, इफ यू प्रिपेयर योर माइंड दैट नथिंग विल हैपन, यू आर फाइन, तो कुछ नहीं होता है। यस मैम, लेट्स गो। Resistance to anything is like trying to change the outside pictures after they have been transmitted. It's futile pursuit. You have to go within and emit a new signal with your thoughts and feelings to create the new pictures. As you resist what has appeared, you are adding more energy and more power to those pictures you don't like. And you are bringing more of them as a furious rate. The event of yeah. The event of circumstances can only get bigger because that is the law of universe. हाँ, तो रजिस्टर से क्या होता है, आपने ऑलरेडी, आप जिस चीज को रजिस्ट कर रही हो, वो आप वर्ड बोलते हो, तो व्हाट इज क्रिएटिंग, व्हाट यू आर क्रिएटिंग, यू आर क्रिएटिंग अ पिक्चर ऑफ दैट। आप जो भी बोलोगे उसका एक मगज में एक पिक्चर इमेज बन जाएगी आपकी। सो देन इट विल बिकम फुटाइल एफर्ट, यू नो। आप वही सोच रहे हो जो आपको नहीं चाहिए। यू आर थिंकिंग अबाउट इट, व्हाट यू आर एमिटिंग दैट ऑफ सिग्नल्स। जो चीज नहीं थी उसी के आप मतलब फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो, और वो अटैक कर रहे हो आप। बिकॉज यू आर सेइंग दैट वर्ड, यू आर थिंकिंग दैट वर्ड, यू आर वाइब्रेटिंग एट दैट लेवल। आप वही लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हो जो आप बोलते हो। So as you resist what has appeared, you are adding more energy. When you resist what has appeared, जो आपके दिमाग में appear हो गया है, you are adding more energy to that, more power to it, and you are attracting that thing. The event or circumstances can only get bigger because that is the law of universe. ये यूनिवर्स का लॉ है कि जो आपने देखा, जिस पे आपने फोकस किया, जिसको आपने एनर्जी भेजी, वो बड़ा होने वाला है। You can't help it. Okay? Yes, ma'am. Jack Canfield, the anti-war movement creates more war.
The anti-drug movement has actually created more drugs because we were focusing on what we don't want, drugs. Right. हम जो अपने एंटी वॉर मूवमेंट चालू किया तो क्या होता है, हर आदमी को गुस्सा किस पे आता है, वॉर पे, और आदमी गुस्से से भर जाता है, तो वो टू लेपर, वॉर विल हैपन. बट इफ यू स्टार्ट अ पीस मूवमेंट, आपने पीस मूवमेंट, हजारों आदमी आए, सब में क्या है, पीस, कामनेस. व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट? बीइंग लविंग, बीइंग पीसफुल. So what you will create? Peace. Same way about drugs. When you talk about go for anti-drugs, तो आप बार बार ड्रग्स ड्रग्स बोलो, तो आपके दिमाग में क्या बैठा है, ड्रग्स. तो एवरीबडी इज क्यूरियस, क्या है, मैं करके देखो, मैं करके देखो. सो डोंट हैव टू गो फॉर एंटी ड्रग. आपको कुछ अलग नाम निकालना पड़ेगा. हैव टू डू समथिंग एल्स. मुझे भी ऐसा कोई याद नहीं आ रहा नाम. वी हैव टू से आई एम गोइंग फॉर दैट, समथिंग एल्स, नॉट एंटी ड्रग्स एटलीस्ट. तो आप उसी को याद कर रहे हो, उसी को बुला रहे हो, and it become bigger and bigger. That picture will become bigger and bigger. Yes. Lisa Nicholas, people believe that if we really want to eliminate something, focus on that. How much sense does it make for us to give the particular problem all of the energy as opposed to focusing on trust, love, living in abundance, education, or peace? Jack Canfield. How much sense it makes when you are talking about something that you don't want? Yes, आगे बढ़ो, फिर देखते हैं. Mother Teresa was brilliant. She said, I will never attend an anti-war rally. If you have a peace rally, I invite me. She knew, she understood the secret. Look what she manifested in the world. Good. Hale Doskin. So if you are anti-war, be pro-peace instead. If you are anti-hunger, be pro-people having more than enough to eat. If you are anti a particular politician, be pro his opponent. Often elections are tripped in favor of the person that the people are really against because he's getting all the energy and all the focus. Everything in this world began with one thought. The bigger things get bigger because more people give their thoughts to it after it has appeared. Then those thoughts and emotions keep that very event in our existence and make it bigger. If we took our minds off and focused instead on love, it could not exist. It would evaporate and disappear. Remember, this is one of the most difficult as well as most wonderful statement to grasp. Remember that no matter what difficulty is, no matter where it is, no matter who is affected, you have no patient but yourself. You have nothing to do but convince yourself of the truth which you desire to see manifested. To see manifested. So आपको चाहिए वही बोलिए. Don't talk of something that you don't want. आप जो चीज के जो आपको नहीं चाहिए उसके बोलेंगे, उसी के में आप सोच आएगी आपको. People really want to eliminate something, but वो क्या करते हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं, वही वर्ड बोल रहा है, उसी को एनर्जी दे रहा है. जैसे मदर टेरेसा ने बोला, मदर टेरेसा said that I will only come to a peace rally, not anti-war or anti-hate rally. क्यों? She wanted to inspire peace in the people. और एंटी वॉर बोलना, मतलब उसके लिए अलग वर्ड है. पीस रैली, एंटी हंगर बोले तो बोला देयर इज लॉट ऑफ फूड, यू नो, पीपल खाने के लिए, समथिंग डिफरेंट. आपको जो चाहिए वो बोलिए. एवरीथिंग अपने दुनिया में सब कुछ एबंडेंस में है. आप जो मांगो मिलेगा. आपने एंगर मांगा, एंगर मिलेगा. आपने टेररिज्म मांगा, टेररिज्म मिल जाएगा. अपने वॉर मांगा, वॉर मिल जाएगा. वॉट एवर यू आस्क. क्या होता है, जो आप सोचे वो बड़ा होता है. क्यों? हम उसको अपना थॉट दे रहे हैं, हम अपनी एनर्जी दे रहे हैं. वी आर मेकिंग इट मोर एंड मोर बिगर. जो नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज करना है. हाँ, जो आपको नहीं चाहिए वापरना ही नहीं वर्ड. आपको पीस चाहिए ना. डोंट से एंटी वॉर एंड ऑल दिस वर्ड इज एंटी टेररिज्म. से पीस. आपका रैली पीस का होना चाहिए ताकि हर एक आदमी दिमाग में पीस हो. जस्ट थिंक आउट पीस, नॉट एवर वॉर. जब आदमी बात करें वॉर, तो हर एक आदमी के दिमाग में वॉर चलता है. दे आर रियली फाइटिंग विद इन देयर माइंड
और वो इतना आक्रोश भर जाता है उसमें कि दे स्टार्ट फाइटिंग देर इन देर, उनको इतना गुस्सा आता है कि जो भी सामने उसको मारने को तैयार हो जाते हैं वो। और जब पीस रैली चलती है सब सारा आराम से चलते हैं, वही इंसान जो उस रैली में गया था बहुत एग्रेसिव था, वही इंसान जब पीस रैली में आता है इज काम, बिकॉज दिमाग में पीस चल रहा है। जो आप बोलोगे वो आप ग्रास्प करोगे। तो क्या चीज चाहिए आपको उसके बोलिए, जो नहीं चाहिए उसके बारे में बोलना ही नहीं है। आपको जो बनना है उसी के बारे में सोचना है, उसी को एनर्जी देनी है, उसी पे फोकस करना है। आप सिंपली सोचिए ना, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एंटी हंगर, तो आपके दिमाग में क्या आता है? आपको भूख प्यास वही आता है दिमाग में, उसी बारे में आप सोचते हो। बट वेन यू आर थिंकिंग ऑन लॉट ऑफ फूड, तो आप क्या सोचोगे? कैसे प्लांट लगाना है, कैसे उगाना है, किसी तरह स्टोर करना है। बट वेन यू आर टॉकिंग अबाउट एंटी हंगर, तो आप क्या सोचते हो कि भाई हंगर आने वाली है, या नॉट हंगर, वो मतलब फूड कम होने वाला है, व्हाट यू कॉल दैट, एनीवे फैमिन बहुत फेमाइन आने वाला है। हाँ, तो वो आएगा, शायद वो आ जाएगा, तकलीफ हो जाएगी, लेट अस स्टोर द फूड। तो आप क्या घर पे फूड स्टोर करके रखोगे और बाकी लोग भूखे मरेंगे। आपकी सोच में क्या होगा? जस्ट स्टोर करो, वो भले फूड खराब हो जाए, उसको दाग लग जाए, उसको कीड़े लग जाए, यू स्टार्ट स्टोरिंग। बट व्हेन यू आर गोइंग फॉर यू नो lot of people, lots of food for all the people, so you will think about planting something, you start distributing the food properly, तो सोच बदल जाती है आपकी। व्हेन यू थिंक अबाउट टेररिज्म, तो आपको हमेशा हर आदमी में मतलब आपको गुस्सा आता है। अब एक कौम दूसरे कौम से झगड़ा करती है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट ओनली पीस, वी ऑल कम टुगेदर टू फाइट फॉर द पीस, नॉट फाइट अगेंस्ट समथिंग बट फाइट फॉर द पीस। कैसे पीस लाना है, क्या करना है उसके लिए, वही सोचते हैं हम। तो ये सोच में फर्क आता है इमीडिएटली। ओके, यस, so it was said by Charles Hamel. Yeah. Yes, ma'am. Jack Canfield. It's okay to notice that what you don't want, because it gives you context to say this is what I do want. But the fact is, the more you talk about what you don't want or talk about how bad it is, read about that all the time and then say how terrible it is, well, you are creating more of that. You cannot help the world by focusing on the negative things. As you focus on the negative events of the world, you not only add to them, but you bring more negative things into your own life at the same time. When the pictures have appeared of something you do not want, it is your cue to change your thinking and emit a new signal. If it is a world situation, you are not powerless. You have all the power. Focus on everybody being in joy. Focus on abundance of food. Give your powerful thoughts to what is wanted. You have the ability to give so much to the world by emitting feeling of love and well-being despite what is happening around you. Yes. जैसे बोलता ना, when they are fighting election, एक आदमी बार बार किसी के बारे में खराब बोल रहा है, तो सबके जहन में नाम क्या आता है? उस आदमी का आता है जिसको वो ऑपोज कर रहा है। यू आर गिविंग मोर एनर्जी टू दैट पर्सन, जिसके बारे में आप बोलते हो। आप बुरा भले बोलते हो, पर आप बोलते हो उसके बारे में, बार बार वही वर्ड आता है, तो पीपल ऑल्सो थिंक अबाउट हिम मोर, क्योंकि सोच में वही है ना। So you have to understand that you have to speak something that you really want in life, not that you don't want. आपको एनर्जी किसको देनी है? जो आपको चाहिए लाइफ में। You want peace, calm, you want happiness, you want joy, उसको एनर्जी दीजिए। You cannot help world by focusing on a negative thing. तो नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, आप घबराहट बढ़ती जाएगी। When you talk about, समझो आपने वॉर की बात की और आपने रैली निकाली, हर आदमी उसमें बहुत एग्रेसिव होता है और बहुत डरपोक भी होता है, अंदर से डरता है वॉर हो जाएगी, वॉर हो जाएगी। तो दिमाग में वही चलता है। एंड व्हाट ही डज समथिंग व्हिच विल क्रिएट वॉर।
वो गंदा बोलेगा किसी के बारे में, वो गलत गलत शब्द बोलेगा, एंड दैट विल इंसल्ट अदर पर्सन। तो वो करके मतलब नहीं है। करना क्या है, यू हैव टू टॉक ऑफ समथिंग दैट यू वांट, तो आपको उसको अट्रैक्ट करना है। व्हाट वी आर हियर टू अट्रैक्ट समथिंग गुड। सो ये आपको क्यों दे रहा है, जब भी आप कुछ सोचते हो ना, अलग बोलते हो ना, आपको क्यों मिलता है कि ये अलग हो जाएगा। सो व्हेन यू टॉक अबाउट व्हाट यू वांट, यू आर गिविंग क्यू टू योर माइंड कि यू वांट दैट, तो आपको वही दिखता है। व्हाट यू फोकस ऑन यू विल ऑब्जर्व एवरी टाइम। आपने समझे बोला कि मुझे एक अच्छा घर लेना है, तो आपको अच्छे अच्छे घर दिखने लगेंगे इमीडिएट, जो आज तक नहीं देखे थे आपने, पर वहीं थे वो, कहीं गए नहीं थे। The house that you are looking for, you start observing them, you start watching them, you start seeing them here and there. जो आपको घर चाहिए, जो आपको गाड़ी चाहिए, जो आपको कलर के कुछ मतलब कपड़े चाहिए, वो आपको दिखने लगेंगे, which are already there, only you are not attracted. ये क्वांटम फिजिक्स में whatever you want is already there, you should know how to attract it. ये पैरेलल लाइफ चल रही है। आपका जो है और आपको नहीं चाहिए वो है, जो चाहिए वो नहीं है पर वो भी है, वही आपको अट्रैक्ट करने वाला चाहिए। So you have to focus on what you want. Give energy to what you want, not to something you don't want. So इसलिए क्या लिखा है, when picture has appeared of something you do not want, it is your cue to change your thinking and emit a new signal. If it is world situation, you are not powerless. You have all power. Focus on everybody being in joy. आपको फोकस करना है सब जॉय में, सब और everybody in abundance. Give powerful thought to what is wanted. You have ability to give so much to the world by emitting feeling of love. बस सिर्फ वो करने से इतना आप दे सकते हो वर्ल्ड को। So start thinking about what you want, talking about what you want, and feeling what you want. Yes, that's right. When I Is it discovered, clear? अब यहाँ तक क्लियर है पूनम जी? हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है सर। एक Okay. बार सर थॉट आ रहा था, जैसे इलेक्शन का है, तो मींस कि जिस पर्सन को बहुत ज्यादा ओपोजिशन मिल रही, तो दैट पर्सन इज बिकमिंग बिगर, बिकॉज सब लोग उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। उसके बाद के सबके दिमाग में बैठ जाता आदमी, वो आदमी के छवि बैठ जाती है। भाई एकदम बुरा आदमी अलग बात है कि भाई सबको नफरत ही उससे। बाकी जैसे कांग्रेस और मतलब ये शिवसेना कांग्रेस, if बाल साहब ठाकरे will talk lot of bad thing about शरद पवार, तो सबके दिमाग में क्या आएगा, शरद पवार, he is advertising about him. आप किसी के बारे में खराब बोलोगे ना, तो पीपल विल ऑल्सो पॉइंट फिंगर एट यू, बोलते इतना क्यों बुरा बोलता है। पर आप अपने बारे में खाली बोलोगे और उसको आप कम करो दोगे, उसके बाद बोलोगे नहीं दूसरे के बारे में, तो पीपल विल ओनली थिंक अबाउट यू एंड योर गुड थिंग्स। तो आप में अच्छा ही है तो उसे बोल लेना। If you want to stand in election and you are doing some good thing, Punam, talk about that good thing. भले वो दो चीजें, दूसरे की 10 खराबी निकाल से अच्छा है आप अपनी 2 अच्छी बात बोलिए और उसको इग्नोर करिए। People will also ignore him because they will copy you. People always copy. They first look at you, they hear you and they copy you. आप उनके बारे में बोलो तो उनको सोचा कि ये इतना खराब क्यों बोल रही है, there is something wrong, we have to find out. तो एक डाउट पैदा होता है और वो आदमी का नाम आता है बार बार, तो वो आदमी दिमाग में छा जाता है सबके कि लेट्स ट्राई, देखते हैं इतना बुरा है क्या। सो इट हैपेंस इन लाइफ। ओके जी सर। When I if there are any doubt, let me know. yes sir. When I discovered the secret, I made a decision that I would not. नहीं जेम्स रे, so many times people, Okay, James Ray. So many times people say to me, well, James, I have to be informed. Maybe you have to be informed, but you don't have to be inundated. inundated, Inundated. फ्लड नहीं करना है, आपको इन्फॉर्म करना है। पूनम, if I have to say something, I have to inform you. If I go on telling something again and again, you are inundated. आपको मैं फ्लड कराऊं, मैं मुझसे वो इंफॉर्मेशन से आपको फ्लड कराऊं पूरा। जैसे सर आजकल वो न्यूज चैनल वाला की है कि हाँ, उसको एक का एक न्यूज बार बार बोलता है, जी। इसलिए तो आदमी का दिमाग खराब हो रहा है आजकल। Why people become impatient? Why they become aggressive? इतना एग्रेशन क्यों बढ़ गया है? Mainly because of news. Only negative news are flourishing, again and again. Flushing, sorry. वो फ्लैश करते हैं न्यूज, खड़ा कट 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 बार बार, और जी। इतना गंदा। और हो क्या रहा है, पीपल आर ऑल्सो बिकम लाइक दैट, जो गंदी बात ज्यादा पसंद सबको।
आदमी एक गाली बोलेगा ना, वो सबको दिमाग में आएगा, अरे गाली बोली, अच्छी बात क्यों दिखता नहीं किसी को. So when they talk about negativity, people like, then they buy more papers and they will see more TV. इसीलिए वो देते रहते. देखो जो बिकता वही आदमी देगा, जी, जो बिकेगा वही आदमी दिखाएगा, और जो दिखता है वो बिकता है. मगर एक्चुअली जो बिकता है वही वो दिखाता है. इट इज उल्टा. बोलते क्या, जो दिखता है वो बिकता है. नो, वो जो बिकता है वही आप दिखा रहे हो. पब्लिक को मतलब होता है ना, एक वो बोलते हैं एक जोक पे आप एक बार 2 बार हंसोगे, मगर एक गम पे आप जिंदगी भर हो सकते हो विथ वन सेंटेंस, बिकॉज यू लव. मतलब आप इतने उसको एडिक्ट हो जाते हो, इतना ऑब्सेस हो जाते हो दुख से, आप एक के बाद एक दुख याद करते हो. यू बिकम ऑब्सेसिव. आई डोंट नो व्हाई, बट दिस इज अ फैक्ट. इन नेगेटिव चीज ना, उसमें वो आपको इतना खींच लेती है, वो आपका एनर्जी पूरा खींच लेती है, एंड यू सरेंडर. एंड पॉजिटिव थिंग इज विल गिव यू एनर्जी. यू विल बिकम हैप्पी बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ एनर्जी. तो जो आप समझोगे ना, यू विल ऑलवेज गो टू पॉजिटिव. हर एक आदमी के लाइफ में दुख है, इफ यू परसीव दैट वे. हर एक आदमी के लाइफ में गम है, इफ यू सी दैट. बट हर एक के लाइफ में बहुत सारा सुख भी है, आपको देखने में आना चाहिए. यू शुड नो हाउ टू सी दैट. और हम क्या देखते हैं, हम सिर्फ दुख की पार्ट देखते हैं, हम सुख का पार्ट देखते नहीं है. ये हमारी हैबिट बन गई है. यस. when I discovered the secret, I made a decision that I would not watch the news or read newspapers anymore because it did not make me feel good. The news services and the newspapers are not in any way to blame for broadcasting bad news. As a global community, we are responsible for it. We buy more newspapers when a huge drama is headline. The news channels rating skyrocket when there is a national or international disaster. So the newspaper and news services give us more bad news because as a society, that's what we are saying we want. The media is effect and we are cause. It's just the law of attraction in action. The news services and newspapers will change what they deliver to us when we emit a new signal and focus on what we want. यस. न्यूज़पेपर वाले क्या करते हैं, वही देते हैं जो हमको चाहिए. व्हेन वी लाइक दिस टाइप ऑफ स्टोरी, यू नो, कहीं डाका लग गया, कहीं किसी ने रेप कर लिया, किसी ने किसी को मार दिया, खून कर दिया, वी आर अट्रैक्टेड. हम वही पढ़ते हैं. बाकी इतनी सारी अच्छी खबरें होती है, वो हम एक लाइन पढ़ते हैं, और जो लिखा होगा ना, ये डाका डाला, किसी ने मार दिया, हम उसको है ना बार बार पढ़ते हैं. वी वुड लाइक टू नो किसने क्या किया. इतने हम जिज्ञासा आ जाती है हमारे अंदर. वी आर सो इंटरेस्टेड. और इसीलिए वो ऐसे न्यूज पहले छपते हैं. एक्चुअली ओनली गुड न्यूज शुड कम ऑन द पेज 1, और बड़े में आना चाहिए, और खराब न्यूज लास्ट में आना चाहिए, एकदम छोटे एक्शन में. बट दैट कैन बी डन ओनली बाय गवर्नमेंट. और मेरे ख्याल से इजराइल में ऐसा है. दे आर सपोज टू प्रेजेंट मोर ऑफ द गुड न्यूज, और बैड न्यूज को पीछे रखना है. वो भी बोलना तो पड़ता है ना, जो हुआ है कुछ तो. बिकॉज यू नो व्हाट हैपन, पुनः याद रखना. अब समझो किसी ने चोरी की, क्या किसी ने किसी याद बदमाशी की, वो जब न्यूज पढ़ता ना, दूसरे आदमी को भी सोचता कि इसने क्या, मैं क्यों नहीं करूं. तो ये बहुत फैलता है. यू गिव पावर टू अदर पीपल टू डू द सेम रॉन्ग थिंग. तो गलत चीज के बारे में जितना कम बोल सको इतना कम बोलना है. टॉक अबाउट ओनली गुड थिंग्स. तो व्हाट यू विल स्प्रेड इज गुडनेस. आप जो स्प्रेड करोगे लाइफ में, दैट विल बी गुडनेस. So we cannot blame newspaper. They are there to survive and they are there to earn. It is you who are causing it. वो इफेक्ट वहां दिखता है आपको न्यूज़पेपर पर. कॉज कौन कर रहा है, आप करके. Are you like that news? So many times people say to me, well, James, I have to be informed. Maybe you have to be informed, but you don't have to be inundated. मतलब आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए एक लाइन में, उसी और आप देखना न्यूज है ना, बार बार वापस आता है ऑन टीवी. न्यूज़पेपर में एक न्यूज लिखा होगा ना, वो एक की बात 2-3 बार बोलते हैं, एंड दे मेक अ बिग स्टोरी आउट ऑफ इट. बिकॉज टू इंटरेस्ट यू. और पीपल, इसलिए मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना ही बंद कर दिया. मैं खाली मेरे काम की बात है वो हेडलाइन पढ़ता हूँ और उस पर ध्यान देता हूँ. आई डोंट रीड. नहीं तो दिमाग खराब होता है.
और रात को तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए आपको। हाँ, रात को तो मूवी भी ऐसी देखनी चाहिए जिससे आपको अच्छी नींद आए, अच्छी नींद। अच्छी सोच है आपको। जी, व्हेन यू स्लीप विद गुड थॉट्स यू विल गेट अप विद गुड थॉट्स। समझो आपको भूत की मूवी अच्छी लगती है, थोड़ा जल्दी देख लीजिए ना, नहीं देखो तो अच्छी बात है, हाँ, पर देखना ही है तो पहले देख लीजिए ना, वाई एट 10 o'clock या 11 o'clock। पर वो शौक है ना आदमी, डर तो लगता है, चद्दर ओढ़ के भी दिखता है बहुत देर। और मुझे वो डर भी लगता नहीं, फिर भी देखता नहीं, मुझे कभी डर नहीं लगता है हाँ, भूत भूत का, क्योंकि बट वो आई डोंट थॉट वॉच। क्रिएट करना। हाँ, वही भी जब सोते हैं तब क्यों, यस स्लीप वेरी नाइसली। सर, मैंने तो इन जनरल भी जो जैसे क्राइम पेट्रोल, निगेटिव मूवीज जो भी है वो देखना ही छोड़ दिया अभी, सिर्फ ऑफ कोर्स, पॉजिटिव। यस, वेरी गुड, राइट विल डू। न्यूज़पेपर भी सर, बिजनेस न्यूज़पेपर, जनरल न्यूज़पेपर जो वो ये। जरूरी है, आपके काम के रिलेटेड जो भी न्यूज आपको पढ़ना ही पड़ेगा, अगर वो थोड़ा पॉजिटिव हो थोड़ा नेगेटिव हो आपको देखना ही पड़ेगा, इट इज रिलेटेड टू योर वर्क। बाकी आप टाइम पास के लिए पढ़ते हो, अरे किसका चोरी हो गई, किसने किसको मार दिया, उसमें क्या पढ़ना है, नॉट गुड थिंग ना। यू शुड नो, एक लाइन पढ़ लिया बहुत हो गया, मगर उसको ज्यादा बढ़ावा देना नहीं है। अभी वो न्यूज पे इतना आता है, उससे एक बढ़ावा मिलता है आदमी को, और एक आदमी बदमाशी करता है, दूसरे आदमी की में हिम्मत आती है ना, जी, उसको मालूम नहीं इसका क्या हुआ है, उसको जेल गया, उसको मारा गया, वो तो ध्यान में लेते नहीं, वो खाली यही देखते हैं इसने चोरी किया, इसको पैसा मिला, दैट्स ऑल द सी। उसके कितने परिणाम होते हैं, कितने मतलब विपरीत परिणाम होते हैं, वो देखता नहीं आदमी ना। ओके, लेट्स गो अहेड। learn to become still and to take your माइकल attention बेनेट, लर्न टू बिकम still and not take your attention away from what you don't want and all the emotional charge around it, and place the attention on what you wish to experience. Energy flows where attention goes. Think truly and thy thoughts थॉट्स आर sell the world's famine feed. रिमाइंड फेड। बोलते हैं थिंक ट्रूली, जो सोचना है अच्छे से सोचिए, एंड दैट थॉट्स, योर थॉट्स साल वर्ल्ड्स फेमाइन फीड, वर्ल्ड का फेमाइन है वो भी इसको फीड करे, मतलब वही सोचना है आपको जो चाहिए आपको। तो लर्न टू बिकम स्टील एंड टू टेक योर अटेंशन अवे फ्रॉम व्हाट यू डोंट वांट। आपको जो नहीं चाहिए उससे आपको अटेंशन निकाल देना है, एंड ऑल द इमोशनल चार्जर। जब आपको कुछ चीज नहीं चाहिए उसको आप सोचते हो तो बहुत इमोशंस पैदा होते हैं, तो इमोशंस निकाल देने हैं, वो सोच निकाल देनी है, एंड थिंक ओनली अबाउट व्हाट यू वांट, focus on that, energize that. Yes ma'am. Are you beginning to see the phenomenal power you have in this world just through your existence? As you focus on the good things, you feel good, and you are bringing more good things to the world. At the same time, you are bringing more good things into your own life. When you feel good, you uplift your life and you uplift the world. The law is perfection in operation. Oppressor, एक बात समझिए पुनः, इफ यू टॉक गुड अबाउट समबडी, तो आपके अंदर कितना हर्ष पैदा होता है, हाँ, हाउ नाइस यू फील। आपने अपने मदर के लिए, फादर के लिए अच्छी बात की, अपने भाई के लिए की, आपके दोस्त के लिए अच्छी बात की, आपको अंदर से कितना अच्छा फील होता है। एंड व्हेन यू क्रिटिसाइज समबडी, आप अपने शरीर को देखिए, सी व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड विद इन यू। आपको क्रोध आएगा, जलन पैदा होगी, एंड यू आर एंजॉयिंग, मतलब वो एंजॉयमेंट कैसा ना, इट्स नॉट अ गुड एंजॉयमेंट, इट्स अ सैडिस्टिक एंजॉयमेंट। देख साले का बारह में बुरा किया, दैट्स नॉट अ गुड एंजॉयमेंट, दैट डजंट गिव यू अ गुड फीलिंग। तो गुड फीलिंग में रहने के लिए आपको, यू हैव टू टॉक गुड अबाउट अदर्स। यू आर नॉट ओनली डूइंग गुड टू अदर्स, बट यू आर डूइंग मच गुड टू योरसेल्फ, बिकॉज आप अपनी जबान से बोल रहे हो, आपके विचार है, तो पहले आपको इफेक्ट करेगा। पहले विचार आपके दिमाग में आया, आपकी जबान से वो शब्द निकले, तो सबसे पहले तो आपको वो बेनिफिट देगा, इट विल अपलिफ्ट यू। बिफोर यू अपलिफ्ट द वर्ल्ड, यू अपलिफ्ट योरसेल्फ फर्स्ट। तो आप याद रखना, जो भी आप करते हो पहले अपने आप पे करते हो, फिर दूसरों पे करते हो। आप किसी की बुराई कर रहे हो, किसी को खराब बोल रहे हो, तो पहले आप अपने आप को इफेक्ट कर रहे हो, योर बॉडी गेटिंग अफेक्टेड बाय दैट। So you should always talk about good things, be in a good feeling for a good life you want. Okay? Yes, ma'am. Dr. John, ये क्या Martini. Di I, Martini. I always say when the voice and the
vision on the inside become more profound, clear, and loud than the options on the outside. You have mastered your life. When the voice and vision, both voice and vision, become more profound and clear and loud, then the opinions of the outside, बाहर का ओपिनियन जो भी हो, उससे आपके अंदर के वर्ड बहुत प्रोफाउंड और क्लियर हो जाए, यू मास्टर्ड योर लाइफ. बाहर भले आदमी मतलब कुछ भी गंदा बोलते, कुछ भी कर देंगे, अगर अंदर से आपकी फीलिंग गुड है, यू आर थिंकिंग गुड थिंग्स, आप पॉजिटिव हो, तो यू मास्टर्ड योर लाइफ. नहीं तो क्या होता है, बाहर का आदमी कुछ बोलता है, वो आपका दिमाग घुसता रहता है, घुसते रहता है, घुसते रहता है, एंड यू मेक योर लाइफ वर्स्ट. या मैम. No, Lisa Nicholas, it's not your job to change the world or the people around you. It's your job to go with the flow inside of the universe and to celebrate it inside the world that exists. Yes, it is not your job to change the world. आपको दुनिया को चेंज नहीं करना है, आप अपने आप को चेंज करिए एंड सी द वर्ल्ड थ्रू योर आईज, थ्रू योर चेंज्ड आईज, एंड सेलिब्रेट. इट्स जॉब टू गो विद द फ्लो इनसाइड ऑफ द यूनिवर्स. यूनिवर्स के अंदर आप एक फ्लो में चले जाइए, अपनी मस्ती में सेलिब्रेट करिए. डोंट ट्राई टू चेंज द वर्ल्ड. पूनम, आप चेंज हो जाओगे ना, इफ यू स्टार्ट लविंग पीपल, यू विल जस्ट सी लव अराउंड यू. If you start saying thank you to people, you will see people are saying thank you to you. They're being nice with you. तो आपको जो चाहिए, आपको वो attract करना है by being what you want, not by complaining what you don't want, by being what you want. मैंने आपको कितना simple example, when you are talking about war और वो रैली निकालते हो, हर एक आदमी के दिमाग क्या है, वॉर वॉर वॉर. तो वॉर में क्या आएगा, एग्रेशन, गुस्सा. तो हर आदमी गुस्से में है उधर, और एनर्जी क्या चल रही है उधर, गुस्से की. और वो एनर्जी क्या होती है, इट्स अ लो एनर्जी, दिखती बहुत ज्यादा है, पर वो उधर ही खत्म कर देता है आदमी को. वो आदमी की एनर्जी पूरी खत्म कर देता है. दे आर नॉट गुड इमोशन. इतने स्ट्रॉन्ग इमोशन होते हैं कि आदमी का पूरा एनर्जी खत्म कर देते हैं. बट वेन यू आर इन अ पीस रैली, आपकी थॉट में क्या है, आपके जहन में क्या है, मतलब पीस, लव, कामनेस, प्यारी प्यार. तो उससे क्या होता है, एनर्जी कैसी होती है, बड़े आराम से चल रहे हो, खुशी में चल रहे हो आप, टॉकिंग गुड थिंग्स, और आपकी एनर्जी बहुत हाई हो जाती है. यू आर फिल्ड विद एनर्जी. गुस्से में आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है. देखा है तो गुस्सा कई बार बहुत अच्छा भी होता है. व्हेन यू आर एंग्री, यू रियलाइज समथिंग, पर उसको उधर रोकने को आना चाहिए आपको. वंस यू रियलाइज, उस पर काम करिए. पर आप गुस्सा ही करते रहोगे तो इट इज बैड. सो एवरीथिंग हैज गॉट सम पे ऑफ. उसको अपने को बराबर यूज करने वाला चाहिए. यस मैम. यस सर. इसका जैसे एक एग्जांपल है कि मैनी टाइम्स, मतलब मेरी डॉटर है तो वो कुछ सुन रही नहीं होती है, मैं उसको बोल रही हूँ, तो इंस्टीड ऑफ उसके साथ में वो गुस्सा करना और उसको जबरदस्ती अपनी बात मनवाने के, मैं अपने आप में बोलती हूँ कि नहीं, मेरी डॉटर मेरी बात सुन रही है, वो पढ़ रही है, वो कर रही है, तो वो पॉजिटिव सेंटेंस बोलती हूँ. तो आफ्टर सम टाइम और वन डे उसके बिहेवियर में वो चेंज शो होता है कि वो और दूसरी करती है फॉलो. और दूसरी बात पूनम, समझो आपकी बेटी नहीं पढ़ रही है, आपको बोलो पढ़ पढ़ पढ़, आप 10 बार बोलोगे पढ़ने का, तो उसको है ना, उससे नफरत होती है वर्ड से. आप एक या दो बोलो वो सुनेगा. आदमी ज्यादा बोलता है ना, वो आप जो वर्ड बोलो उसको कैंसिल करता है. वो यू आर कैंसिलिंग योर वर्ड्स ऑटोमेटिकली. उसमें वो वर्ड से गुस्सा आने लगता है, वो नफरत करने लगती है वर्ड से. मगर आप एक बार बोले को बेटा पढ़ना है इसलिए ये अच्छा है, आपको जो बोलना है एक बार बोलिए और छोड़ दीजिए, तो वो उसके दिमाग में घुसेगा. शी विल रियलाइज कि मम्मी ने कुछ बोला है. और आप बार बार बोलोगे तो आपको मम्मी नहीं, वो आपको दुश्मन समझेगी कि मेरे पीछे पड़ गई है. सो डोंट डू इट. ये मैं भी करता था, मैं अभी सीखा हूं. और मैं अभी क्या होता, कितना ही मेरा बेटा चिल्लाता कभी, ना तू रुक जा थोड़ा, मैं सोचने दे मेरे को, मैं तो बताता हूँ. और इतना काम डाउन हो गया अभी, पूछो मत. ये फर्क पड़ता है. तो से एंड लिव इट. आपको लगता है, आप क्या करते हो, सोचते हो सुना कि सुना, आप पूछते हो, डोंट आस्क. एवरीबॉडी इज लिसनिंग. आपका सबकॉन्शियस माइंड सुन ही रहा है. बस हल्के से बोलिए. सटल बोलने में ज्यादा इफेक्ट होता है. अब जब ज्यादा जोर जोर से बोलते हैं उसका इफेक्ट नहीं होता है.
Especially when you are trying to tell person to do something else. Don't try to change people, बोलते ना, change yourself. तो आप अपनी थोट लाइए, हाँ मेरी बेटी अच्छी है, अच्छा पढ़ रही है, अच्छे मार्क्स ला रही है, तो आपकी जो सोच बदलेगी ना, आपके भावार्थ भी बदल देंगे, the way you act with her वो भी बदल देंगे. जी. It automatically become nice to her. Yes. Yes, sir. You are the master of your life and the universe is answering your every command. Don't become mesmerized by the pictures that have appeared if they are not what you want. Take responsibility for them, make light of them if you can, and let them go. Then think new thoughts of what you want, feel them, and be grateful that it is That it is done. done. So you have to think about what you want. जो नहीं चाहिए उसको सोचना नहीं है, वो सोच आ गई तो उधर ही रोक दीजिए and start thinking of what you want and be happy in your life. The universe is abundant. The joy it is Vitle. Vitle. Dr. One J. of Vitle. the one of the questions I get asked all the time. It is everyone. Time Uses. is if everyone uses the secret and they all treat the universe, take a catalog, are not we going to are not Out of stuff. run out of stuff? Would not everyone just make a run for it and burst the hang? हाँ, सब लोग मांगेंगे, यूनिवर्स का कैटलॉग पढ़ेंगे और सब मांगेंगे तो कमी तो नहीं पड़ेगा ना. ये सवाल पूछते हैं. Yes, let's go ahead. Michael Bernard Beckwith. What's beautiful about the teaching of the secret is that there is more than enough to go around for everyone. Everyone, yes. There is a lie that acts like a virus within the mind of humanity. And that lies is there is not enough good to go around. Good to go around. There is a lack, there is limitation, and there is just not enough. And that lie has people living in fear, greed, stinginess, and those thoughts of fear, greed, stinginess, and lack become their experience. So the world has taken a nightmare pill. The truth is that there is more than enough good to go around. There is more than enough creative ideas. There is more than enough power. There is more than enough love. There is more than enough joy. All of this begins to come through a mind that is aware of its own infinite nature. Infinite nature. तो बोलते हैं कि आदमी को डर रहता है कि हर एक आदमी सीक्रेट सीख लेगा and they start asking what they want from the catalog of the universe, तो वो आइटम कम तो नहीं पड़ जाएगी ना. मगर हम एक समझने बात है कि यूनिवर्स के पास सब कुछ अबंडेंस है, जितना आप ले सकते हो उससे कई गुना ज्यादा है. हर चीज मतलब जो आप मांगो सब कुछ बहुत ज्यादा है, कोई चीज कमी नहीं है. यू आस्क फॉर इट. और आस्क कैसे करना है? बड़े दिल से, बड़े भाव से, बड़े विश्वास से. न तो एक तो अपने अंदर हम बोलते हैं कि हमको ये फलाना गाड़ी चाहिए या फलाना घर चाहिए या फलाना बिजनेस करना है मुझे, और बैक ऑफ माइंड क्या चलता है, मैं बोल तो रहा हूँ, सीक्रेटली लिखा इसलिए बोल रहा हूँ, आई डोंट नो क्या होगा, लेट ट्राई. तो वो ट्राई हो जाता है, वो कभी पूरा होगा क्यों? बिकॉज यू सेड वर्ड ट्राई. तो यूनिवर्स विल लेट यू ट्राई, गिव यू लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी टू गो ऑन ट्राइंग. यू विल नॉट रीच वेयर यू वांट टू रीच. आप खाली ट्राई करते रहोगे जी. मगर आपने जो विश्वास डाल दिया और वो विश्वास से आपने काम चालू किया, यू विल रीच द डेस्टिनेशन वन डे, और वेरी क्विकली, जल्दी हो जाएगा. अगर आपने डाउट रखा तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम, और वो आएगा नहीं आएगा वो भी डाउटफुल है. क्यों? आप डाउट करते हो तो वो नहीं आएगा शायद. जिस दिन आप विश्वास पूरा करोगे उसी दिन मिलेगा आपको. तो वट एवर यू टू आस्क फॉर इट विथ लॉट ऑफ फेथ. फिर आप बोलते क्यों नहीं हुआ? और जब आपके और लगभग क्या होता है, आदमी के दिमाग में ऐसा होता है कि यूनिवर्स में एबंडेंस नहीं है, वो सोचते खत्म हो जाएगा, इसलिए वो ग्रीडी बन जाता है, लालचू बन जाता है, वो हर चीज को छुपा के रखेगा, बचा के रखेगा, कल नहीं मिला तो. एंड दैट इज द वे दे लिव द लाइफ, विद द लैक इन द माइंड. दिमाग में लैक चल रहा है, तो आगे क्या होगा? ओके, यस. Think there is not enough
is to look at the outside pictures and think that everything comes from the outside. When you do that, you will most surely see lack and limitations. You now know that nothing comes into existence from the outside and that everything first comes from thinking and feeling it on the inside. Your mind is the creative power of all things. So, how can there be any lack? It's impossible. Your ability to think is unlimited, and so the things you can think into existence are unlimited. And so it is with everyone. When you truly know this, you are thinking from a mind that is aware of its own infinite nature. यस, आपका माइंड इन्फिनिट नेचर है. आप आपको ये सोचना नहीं कि कुछ कम पड़ेगा. एवरीथिंग इज इन अबंडेंस. कोई चीज की कमी है ही नहीं. ये सोचना ही है कि कम पड़ जाएगा, इनफ नहीं है, वहीं आप भूल करते हो. आप जब ये सोचते हो, यू विल सी द लैक. आप अपने लिमिटेशन खुद बनाते हो. यू वॉन्ट गेट मोर. कि आपने सोच लेना वैसा, वही वो तथास्तु बोल देता है. यूनिवर्स क्या बोलता है? तथास्तु. आपने बोला खुशियां, तो ये आदमी खुश है, मैं तो खुश नहीं हूं, तो बोलता तथास्तु. ये बोलता मैं बहुत दुख है लाइफ में, मुझे खुश होने पर बहुत दुख है लाइफ में, बोलता तथास्तु. तो यू विल बी ब्लेस्ड विथ व्हाट यू आस्क फॉर. यूनिवर्स के पास इतना टाइम नहीं है कि एक एक को जाके सुने और समझे. आपको समझना है और आपको वही बोलना है जो आपको चाहिए. नथिंग विल कम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम आउटसाइड. बाहर से कुछ नहीं आएगा. जो आएगा वो अंदर से आएगा. हमारे अंदर की जो फीलिंग है वही बाहर आती है. बाहर जो दिखता है वो मोह माया है. उसको आप कितना भी ले जाओ नहीं मिलेगा. सब लोग झड़प रहे, मगर अंदर से आपको कामनेस है, हैप्पीनेस है, थिंग्स विल कम टू यू. आपको बिजनेस मिलेगा, आपको काम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, मगर पहले अटूट विश्वास. अटूट विश्वास. फिर आप बोलोगे अरे मेरी जॉब लगी नहीं है, मेरे को तो खाने के वांदे हो गए. होंगे. द वे आई एम, द व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, आप लोग देखोगे ना, यू विल बी सरप्राइज. बट आई एम सो काम एंड पीसफुल, और सब अच्छा हो रहा है. पीपल आर कमिंग टू सपोर्ट मी. व्हाई? यू नो, बिकॉज आई एम काम. मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँ. जो मैं ये हो जाता था, हड़बड़ा जाता था, डर जाता था, तो पीपल वुड हैव रन अवे फ्रॉम मी. कि खुद भरा हुआ मुझे कैसे पहुंचाएगा. मतलब मेरा कॉन्फिडेंस देखते रहो. When they see that he's not worried, people come and join me. और ज्वाइन कौन करते हैं? जो मुझे नहीं पहचानते, जो मुझे बहुत बचपन से पहचानते हैं. उनको मालूम कि आदमी कैश क्रंच में आ गया है, क्या बिजनेस डाउन हो गया है. They are not helping me because they have made that notion. कि others don't have, but they don't understand. I have a lot of power in my mind. I have a lot of power within me. I have a lot of potential. उसका फायदा कौन लेगा? जो आदमी समझ पा रहा है. जो आदमी मुझे जानता नहीं है, क्यों हर को क्या लगता है मैं हर को पहचानता हूँ. नो, यू जस्ट नो मी. यू कैन नॉट अंडरस्टैंड मी. नोबडी कैन अंडरस्टैंड ईच अदर. यू कैन नो फ्रॉम आउटसाइड. मेरे अंदर क्या नहीं मालूम. खजाना तो अंदर है ना. तो जो भी होता है वो अंदर से होता है, नॉट फ्रॉम आउटसाइड. आप बाहर घूमते हो, आप बारों बार सब देखते हो और लालच करते हो, वो नहीं करना चाहिए. अंदर से मजबूत बनिए. यू विल गेट गुड जॉब. यू विल गेट जॉब दैट यू वांट. यूनिवर्स परीक्षा लेगा आपकी. आप सोचोगे ऐसे ही दे देगा, नहीं. आपकी एग्जाम तो लेगा, उसमें आप खरे उतरोगे तो ही मिलेगा. वो कैसे उतर सकते खरे? विद अ टोटल बिलीफ इन द यूनिवर्स, विद फुल कॉन्फिडेंस. तकलीफें आएगी, उसको सहन करना हंसते हंसते. बिकॉज व्हेन यू सी योर डार्केस्ट पार्ट इन योर लाइफ, देन ओनली इवॉल्व. वो जो डार्क पार्ट है उसको आपने समेट लिया अपने अंदर, उसको समझ लिया, उसको आपने हक कर लिया, तो फिर देखो सब कुछ आपके लिए खुल जाएगा. There will be opening for you, big opening. बोलते हैं ना, there are so many mirrors. एक मिरर जो आपको अपने आप को दिखाता है, एक मिरर जो आप जैसे आप किसी को जज कर रहे हो, इसी में एक, इसमें एक मिरर ऐसा है जो आपका डार्क पार्ट है लाइफ का, वो आपको याद करना है. अपने उसको ले लिया आगोश में, तो पूरा कायनात आप जीत जाओगे. ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली, समझो तो. यस मैम, लेट्स गो. बहुत अभी 10 मिनट बाकी, साथ में हम बहुत ढीला चल रहे हैं. कृष्णा ने सर हैंड रेज किया है. क्या क्या? कृष्णा ने हैंड रेज किया है. हाँ, वो तो भाई भगवान ने. नहीं नहीं, सबसे अच्छे लगते ना सर पार्टिसिपेंट अपनी कृष्णा का हैंड रेज है. हैंड रेज. ओके ओके, यस बोलिए बोलिए मैडम. सॉरी सॉरी.
हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे हम बोलते हैं कि हम नेगेटिव बिलीफ से दूर रहना चाहिए, न्यूज से दूर रहना चाहिए, तो नहीं, ऐसा नहीं बोला मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला नेगेटिव थॉट को देखिए मत, आप पॉजिटिव सोचिए। क्यों नेगेटिव से आप दूर जानते होगे ना, वो ज्यादा आएगा। डोंट रेजिस्ट, इट विल परसिस्ट। ओके, गो अहेड, सॉरी बोलिए क्या हाँ, बोलते तो हैं? उसमें लाइक बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो सोच रहे, जो श्रद्धा रख रहे कि मैंने जो मैनिफेस्ट करना है या मैंने जो एफर्मेशन लिखा है वो पूरा होना चाहिए, बट यस, उसका टाइमलाइन होता है। जैसे हमने डिसाइड किया ठीक है 3 मंथ 6 मंथ्स में होगा वो, और अगर वो नहीं होता है तो हम और डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो उस चीज को कैसे हैंडल करना चाहिए? अपने आप पे पूरा फेथ, क्योंकि जो वो 6 महीने होना नहीं हुआ ना, तो कहीं तो भी आपके अंदर ये आया होगा कि हो नहीं रहा है। कहीं तो भी आपको डाउट आया ही होगा। आप वापस सोचोगी ना उसके बारे में, यू विल रियलाइज यू हैड सम डाउट। तो आपको उसको और वक्त देना पड़ेगा। सी मैडम, आपको है ना, आपका जो एम है, आपका जो विजन है, उसको नहीं बदलना है। आपको पाथ बदलनी है। कोई पाथ में हर्डल आएगी, यू टेक अनदर पाथ। आपको डी रूट लेना है। डोंट चेंज योर विजन। सबसे बड़ी बात है विजन, उसको चेंज नहीं करना है। रास्ते बदलिए एंड रीच दैट। आप थोड़ा लेट होएगा, इसमें क्या है। जैसे मैंने अपने लिए सोचा है, अपने बिजनेस के लिए मैंने कुछ सोचा था, तो बीच में ये आ गया डिमोनेटाइजेशन, बाद में रेरा और जीएसटी आ गया, थोड़ा और टाइम लगा, पर मैं हिला नहीं। मेरा विश्वास नहीं हिला है। आप समझो बात को। अभी भी अटूट हूं कि मैं तो ये करके रहूंगा। तो हो रहा है, जिंदगी हंसते से निकल रही है, क्यों मैं हंस रहा हूँ। जिंदगी रोते भी काट सकता था मैं। हर चीज पे रोना है, कोई वांदा नहीं। आपको दिन में ना, कृष्णा मैडम, 10 चीज दिखेगी जिसके लिए आप रो सकती हो। हाँ वो तो बट यू है। कैन ऑल्सो फाइंड 10 थिंग्स विच यू कैन लाफ एट, यू कैन बी हैप्पी अबाउट। अभी समझो, कल मैं एक मीटिंग करने गया एक आदमी से। मैं बोला अपना काम लेना साथ में। तो उसने बोला, उसने ऐसी बात की ना, यू कैन टेक आउट 2 मीनिंग, ये तो ना बोल रहा है, ये हाँ बोल रहा है। मैंने मेरे भाई को बोला, देख इसने ऐसा बोला, हाँ मतलब वो हाँ बोल रहा है। He said, हाँ यस, अरे बराबर है। नाउ व्हाट विल डू, विल कम विद सम वर्क। उसको बोलेंगे देखो ये काम आ गया है, विल गो टू हिम। नहीं तो हम क्या सोचते हैं, उसने ना बोला हम जाते नहीं उसके पास, और हम एक बार जाएंगे, उसको दिखाएंगे काम आया है। He might take interest, he might not take interest. We'll go again. So one day will come when he will take interest. हाँ ट्रू। तो समझो, मैंने बोला 2 महीने में हो जाए काम, मिलेगा नहीं मिलेगा, 2 महीने 4 महीने मिलेगा, हो सकता है कुछ कारण है। कहीं तो अंदर अपने अंदर होगा कुछ जिससे नहीं आ रहा है। बाकी लॉ इज फॉर एवरीवन। कहीं तो भी हल्का भी डाउट आ गया तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। ओके सर, थैंक ओके, यू। थैंक यू। ओके। सर हिलना नहीं कृष्णा मैडम, अपने विजन से हिलना मत। आपको भगवान सब देगा जो आप चाहती हो। जो भी हर्डल्स आएगी, हर्डल्स नहीं है, वो चैलेंजेस है, हंसते हंसते उसको फेस करना। ओके सर, थैंक यू। यस। और कभी भी तकलीफ है ना, आप मेरे को फोन कर सकते हो सकता है मैं रात को लेट बात करूं, मेरा बिजनेस चलता है इसलिए। बट आई टॉक टू यू, आई विल टॉक टू यू अप टू यू आर सेटिस्फाइड। ओके। मैं छोड़ूंगा नहीं। ओके चलो, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके बाय। और सर जैसे एक चीज है कि कभी सिचुएशन, जैसे मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ, आई वाज थिंकिंग कि मैं इस डेजिग्नेशन पे जाऊंगी और थिंग्स उल्टा ही टर्न आउट हो गए। तो फिर उस सिचुएशन में आई एम टेकिंग एवरीथिंग इन पॉजिटिव कि ये ऐसे हो रहा है बिकॉज कि मेरे फेवर में है, मेरे फेवर में। सो थिंक एवरीथिंग कि वो आपके खाली लिए पॉजिटिव हो रही है। नॉट ओनली इन फेवर, मैंने मेरे साथ जो देखा ना अभी अभी हुआ है 1 साल में, ऐसी ऐसी बातें हुई है कि बोले गए तो तू तो खत्म हो गया, उल्टा फायदा हुआ था मेरा। देर आर ऑलवेज ब्लेसिंग इन डिस्केस। कभी कभी आपसे आप जो सोते नहीं होता ना, तो वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। वो अमिताभ बच्चन के फादर ने लिखा था, आप जो चाहो हो जाए तो अच्छी बात है, अगर आप जो चाहते हो वो नहीं होता है तो और भी अच्छी बात है। तो अमिताभ जी बोलते मुझे समझ में नहीं आया पहले, मगर आज जब मैं जिस दौर से गुजरा हूं, आई अंडरस्टूड कि वो अच्छी बात क्या है, कि वो भगवान की मर्जी थी। उन्होंने लिखा भी है, वो होता है भगवान की मर्जी से, वो और भी अच्छा है। बिकॉज गॉड इज वॉचिंग यू, इज सीइंग यू, ही लव्स यू। वो आपको है ना खड्डे में नहीं गिराना चाहता है, इसलिए वो कहते हैं छोटी छोटी तकलीफ देता है, ताकि आप प्रैक्टिस हो जाओ, फिर जब आप खड्डे में गिरो तो आपको लगे नहीं। तो ये टीचिंग यू। और समटाइम क्या होता है ना, मैं वो आपको छोटी छोटी तकलीफ क्यों दे, आपको उठाने की, वो आपको उठा के वो बाजू ले जाना चाहता है।
इज मेकिंग अ ब्रिज ऑफ दैट थिंग। तो आपको हर्डल्स आएगी, पर वो ब्रिज बना दिया कि आखिर ये नीचे की तकलीफ आपको दिखे नहीं, आप ओ बाजू चले जाओ। इट इज फॉर योर मोर बेटर दिस पर्सपेक्टिव, कुछ और अच्छा हो रहा है आपका। ये आप विश्वास करिए और होता है, मगर विश्वास करना पड़ेगा। एक बात बोलूं पूनम, तू कुछ भी कर ले, तू विश्वास नहीं करेगी, तू बोलेगी क्या मालूम भगवान ऐसा क्यों है, इतना गाली दे दे, उससे कुछ बदलने वाला है तेरा? हाँ पूनम मैडम, No, sir. No, sir. तो अच्छा है ना, आप अच्छा सोचो ना, कम से खुश जी। तो रहोगे, भगवान जो जी। कर रहा है, अच्छा कर रहे हैं, Yes, कम से sir. खुशी तो मिलेगी आपको। And sir, और actions उस भी खुशी change हो में, जाते हैं। हाँ उस खुशी से आप यू विल टेक सम गुड एक्शन, Yes, और sir. आपका काम हो जाएगा। जी। मगर उसी वक्त आपने नफरत कर ली भगवान से, तो कुछ नहीं होगा, हाँ। क्यों? भगवान आपके अंदर बैठा है, भगवान कहीं नहीं है। Yes, sir. जो भी है वो आपके दिल के अंदर है, सबके अपने अपने भगवान, सबके दिल में भगवान है, वो सब जगह बस रहा है। वो आपको बोलता है अच्छा करो, मगर आप डर जाते हो, आप करते नहीं हो। बी Yes. ब्रेव, बी ब्रेव, बस। Yes, sir. चलो बाबू आगे थोड़ा इतना सीधा पढ़ लेते, एक दो पेज James टाइम हो Ray. गया। James हाँ, Ray, every great teacher who has ever walked the planet has told you that life was meant to be abundant. The essence of this law is that you must think abundance and see abundance, feel abundance, believe abundance. Let no thought of limitation ever enter एंटर योर माइंड, जो अभी your अपने mind. बात कर ना वही। ओके यस, गो अहेड। John Asser. And so, just when we think that resources are dwindling, ड्विंडलिंग, we find new resources that can achieve the same things. हमने अब यही बात की पूनम जी, जी. वी ऑलमोस्ट टॉक सेम थिंग। Yes, sir. Yes, sir. नहीं होता क्या होता है? हाँ, जी. गो अहेड, गो अहेड। The true story of our Valley's oil team is an inspiring example of the power of the human mind to bring forth resources. The directors of Valley's Natural Energy Limited were trained by the eminent Dr. Tony Quinn, who specializes in humanistic साइकोलॉजी ट्रेनिंग, psychology training, नहीं फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी बेस्ड। physiology training. With Dr. Quinn's mind power training, the directors were confident that their mental picture of Valley's being a successful oil producing country would be achieved. They took a brave step forward to drill for oil in Spanish Lookout, and in one short year, their dream and vision became a reality. Valley's Natural Energy Limited discovered oil of the highest quality in abundant flows where 50 other companies had failed to find any. Belize has become an oil producing country because an extraordinary team of people believed in the unlimited power of their mind. Nothing is limited, not resources or anything else. It is only limited in the human mind. When we open our minds to the unlimited creative power, or we call forth abundance and see and experience a whole new world. तो देयर इज नो लिमिटेशन, एवरी अनलिमिटेड। जितना आपके अंदर पावर है, इस खाली बेलिस को क्यों मिला? बाकी 50 कंपनी थी, उनको क्यों नहीं? उन्होंने क्या थोड़ा खोदा, थोड़ा किया, डर गए। दिस फेलो वेंट ऑन। उसको वो मिस्टर टोनी क्वीन थे, उन्होंने उनको समझाया, उनको ट्रेनिंग दी, उनको पावर दिया, एंड दे वेंट ऑन। उनको ऑयल मिल गया, और भरपूर ऑयल मिला। तो देयर इज नो लिमिटेशन इन लाइफ, लिमिटेशन इज विद इन योर माइंड। रिसोर्सेज बहुत है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है। आप देखो ना, ऑयल का बदले में कितना एनर्जी का आ गया अभी। पहले किसी ने सोचा था? एवरीबॉडी वाज यूजिंग ऑयल ओनली। जैसे लगा कि बहुत महंगा हो रहा है, दे स्टार्टेड फाइंडिंग समथिंग न्यू। सोलर से एनर्जी निकाला, पानी से निकाला, कहाँ से एनर्जी निकल रही है। नाउ दे विल कम आउट विद बैटरी आल्सो, जो अपना आप चार्ज करेगी, हो सकता है, आई डोंट नो, खुद को चार्ज करे। तो पीपल, ये बोला इट्स मदर ऑफ इन्वेंशन। जब आपको नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन, जब तक जरूरत नहीं पड़ती आप काम ही नहीं करते उस पर। बाकी इट इज ऑलरेडी देयर। ये जो सोलर एनर्जी है, ये जो हाइड्रोलिक एनर्जी है, वो ऑलरेडी थी, आपके नई नहीं आई है। वी हैड टू अट्रैक्ट इट। वो कब हुआ? जब आदमी को जरूरत पड़ी, तब हुआ। Yes, sir. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्टोइक इन योर विजन। जब आपने सोच लिया तो उसको पाना ही पाना है,
उसके लिए ना आप, और मजा क्या ना, पूनम, यू विल एंजॉय द जर्नी। आप जब पहुंच जाओगे, जहाँ जाना है आपको, समझो आपने सोचा कि मुझे अमेरिका घूमने जाने का है या यूरोप जाने का है, और जी। यूरोप पहुंच गए ना, तो आपका जो खुशी है ना वो थोड़ा कम हो जाता है। यू आर एंजॉइंग द ब्यूटी। और जब अब तक आप जा रहे हो, आपके अंदर इतना एक्साइटमेंट होता है, मैं हाँ, ये करूंगी, मैं वो करूंगी, उसका जो मजा है, दैट इज ब्यूटीफुल। सो आपके विजन का भी ना, विजन जब पहुंचोगे तो पहुंचोगे, उसकी जो जर्नी है उसको एंजॉय करिए, जस्ट एंजॉय इट, बहुत मजा आता है, ब्यूटीफुल। मतलब जर्नी जो जितना मजा ले सकता है उतना बहुत बड़ा फायदा होता है आदमी का। स्टार्ट एंजॉइंग जर्नी, तो एक अलग मजा है इसका। even though we जर- say we have lack, it's because we don't open up our vision and see all of the what is around us. You know, when people start to live from their heart and go for what they want, they don't go for the same things. That's the beauty of this. We don't all want BMWs. We don't all want the same person. We don't all want the same experience. We don't all want the same clothing. We don't all want. fill in the blank। तो हमको सबको वो नहीं चाहिए, आप समझे ना। Even though we say we have lack, it's because we don't open our vision and see all that is around us। हम जब बोलते हैं ना कमी है, कमतरता है, हम अपना दिमाग को, विजन को खोलते नहीं, हम देखते नहीं आजू में क्या क्या है। सब कुछ है, बहुत कुछ है। You know, when people start to live from the heart and go for what they want, they don't go for same things। That's the beauty of this। क्योंकि हर एक आदमी की चाहत अलग होती है, हर एक का विजन अलग है। किसी को BMW चाहिए, किसी को मर्सिडीज चाहिए, किसी को प्लेन चाहिए, और किसी को साइकिल पे एक्सरसाइज करनी है। यू वांट अ वेरी गुड साइकिल, यू वांट टू एक्सरसाइज, इट डजंट वांट कार, प्लेन नहीं है। देयर आर पीपल हु जस्ट गो इन ट्रेन, एक गाड़ी खड़ी है घर पे, बट दे डोंट लाइक इट। मेरा भाई ही विल नॉट यूज कार, ही विल जस्ट गो बाय ट्रेन। बोलता है अरे जल्दी पहुंचता हूँ मैं, और मेरा बेटा गाड़ी के बिना जाएगा नहीं। तो सबकी अपनी अपनी चाहत है। एवरीबडी इज अ डिफरेंट विजन, डिफरेंट रिक्वायरमेंट। So nothing to worry. There is no lack. There is only and only abundance in life. So don't talk about what we don't want. Just say what we want. You जो are नहीं चाहिए here. इससे बात नहीं रहे। आज अपन यही बंद करता है, 158 पेज हो गया है, तो टुमारो विल स्टार्ट फ्रॉम 159। नहीं, यू आर हियर। Yes, sir. अरे ये कंटिन्यू, ये कर लो, ये कंटिन्यू है, प्लीज। यू आर हियर। You are here on this glorious planet, endowed with this wonderful power to create your life. There are no limits to what you can create for you because your ability to think is unlimited. But you cannot create other people's life for them. You cannot think for them. And if you try to force your opinions on others, you will only attract life forces to you. So let all others create the life they want. Yes, आप अपने लिए सब कुछ कर सकती हो। The planet is endowed with so many, wonderful things। इतना कुछ है लाइफ में, मगर आप दूसरे के लिए कर सकते हो। वो उनकी इच्छा होनी चाहिए पाने की। यू कैन डू फॉर देम। वो उनकी अंदर की इच्छा होनी चाहिए कि मुझे कुछ चाहिए, तो ही उसको मिलेगा। सो लेट देम डू इट। आप सपोर्ट कर सकते हो, बट यू कैन नॉट डू फॉर दस। आप अपने लिए करिए। आपकी जो वाइब्रेशन फैलेगी अपने आप, आपके इर्द गिर्द जो आपके बेटे हैं, आपके हस्बैंड है, आपकी सासू और ये ससुर है, उनको भी मिलेगी आपका ये वाइब्रेशन, एंड दे विल स्टार्ट डूइंग इट। आप नहीं कर सकते हो, यू कैन जस्ट इंस्पायर देम। ओके, सो विल एंड हियर। कल हम वापस 115 चालू करते हैं माइकल बेनार्ड से। ओके, Yes, sir. ओके मैम, थैंक यू। आज बहुत लेट हो थैंक यू, गया। थैंक यू सर। Thank you. टाइम क्या हुआ? Thank you, sir. अभी टाइम क्या हुआ? 7 a.m. 4 minutes. थोड़ा लेट हो गया, इतना कुछ ज्यादा लेट नहीं हुआ है। हाँ, जी. एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। बहुत, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आप, हम लोग सब मिलते सुबह। आपका मालूम नहीं, पर मेरा दिन अच्छा आता है। आई Sir, फील लॉट जी. ऑफ एनर्जी इन माई सेल्फ। यस सर। और सर एक ये पॉजिटिव कम्युनिटी है, तो वो जो एक बॉन्डिंग है ना, वो बहुत अच्छी है क्योंकि पॉजिटिविटी की वजह से। बहुत पॉजिटिव है, वो तो बहुत फर्क पड़ता है। द कंपनी दैट वी हैव, द कम्युनिटी वी हैव क्रिएटेड, उसका जो फायदा है वो तो गजब है। वी हैव लिटरली, मतलब वी हैव कम आउट विद समथिंग गुड, कि सब लोग एक जैसे सोच रहे हैं, सब लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ओके जी,
Thank you, Thank sir. you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank sir.